أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو میں میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سیشن کو میں پھر سے سٹارٹ کرتا ہوں. تو میرا ٹاپک ہے لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسیج اینڈ ٹیک اوے. تو انشاءاللہ یہ سیشن میں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں, کچھ امپورٹنٹ پہلو ہیں, میں اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. سیرت تو بہت بڑی ہے اور سیرت سے ہر ایک ایسپیکٹ سے ہم کو بہت کچھ سبق ملتا ہے, مگر کیونکہ میرا ٹائم صرف آدھا گھنٹہ ہے اور مجھے کچھ امپورٹنٹ باتیں رکھنی ہے, میں اپنے پریزنٹیشن میں 5 پوائنٹ لیا ہوں. وہی 5 پوائنٹ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا کہ یہ کیا 5 پوائنٹ ہیں جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں بہت پوائنٹ ہے, مگر 5 اہم پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جو میں فیل کیا کہ ہمارے لیے آج کے سینیریو میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. پہلا پوائنٹ ہے ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. صرف یقین نہیں, مکمل یقین اور بہت اسٹرانگ یقین کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک امپورٹنٹ سینیریو کا. جب ہجرت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ, اس کے دوران میں غار سور ایک جبل سور ایک پہاڑ ہے, اس کا اندر کا اس میں اگر اوپر جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اسپیس ہے جب پہاڑ میں روزن رہتا وغیرہ, تو وہاں پہ جا کے رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ چھپ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کفار ان کو ڈھونڈیں گے اور وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو اتنا ڈھونڈے اور اتنا اسپریڈ ہو گئے کہ وہ جو پہاڑ کے چوٹی تک آ گئے. جب پہاڑ کے چوٹی تک آ گئے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا ڈر گئے کہ اگر یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے تو ہم کو وہیں پکڑ کے ہمارا قتل کر دیں گے. مگر وہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ غم نہ کرو, ڈرو نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے سپورٹ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو جب بھی ہم اس سے ہمارا بیسک سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ جہاں بھی کام کو جائیں, ان کے کام کو جائیں, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ہوا کام ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہماری بیسک سمجھ, یہ بیسک ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کے سلسلے میں پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا. اس کے بعد اگر یہ انسیڈنٹ پورا اگر دیکھیں تو کفار وہاں سے نکل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آرام سے وہاں سے نکل گئے اور آرام سے کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئے. تو اس سے بیسک چیز یہ امپورٹنٹ ہے ہم کو سمجھنے کے لیے کہ آج جو ہم کو ضرورت ہے کہ ایمان ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. جو بھی اگر ہم کو پریشانی ہوتی ہے یا جو بھی ہم کو پرابلم آتا ہے ایز این انڈیویجول یا ایز اے مسلم کمیونٹی, جو بھی ہم کو پرابلم آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اصلیت ہے. اور ہم کو ہمارے طرف سے ہم کو جو کام کرنا چاہیے, جو اقدام کرنا چاہیے, جو اسٹیپ اٹھانا چاہیے, ہم کو وہ کام کرنا ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہاں پہ سپورٹ دینا ہے اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی مدد آنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ مدد کو بھیجے گا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمارا مکمل ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسرا جو سبق ٹیک اوے میسج ہم کو ملتا ہے سیرت سے, سیریس اباؤٹ دیٹ ٹاسک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دیا, وہ ٹاسک کے سلسلے میں
नबी बनने के बाद 23 साल 23 इयर्स कंप्लीटली रसूल सल्लम उसके लिए डेडिकेटेड थे। और नबूवत तो 23 इयर्स थी, मगर जब मक्का फतह हुआ, जो सबसे बड़ा काम होना था, जो सीरत को ऑलमोस्ट कंप्लीटली मुकम्मिल कर देता है, वो मक्के की फतह है। तो बेसिकली क्या होता है, उसे मक्का फतह हो जाता है। और नबी बनने से लेकर मक्का फतह होने तक अगर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन भी अपने काम के सिलसिले में लापरवाही नहीं बरते। हर वक्त तहज्जुद को उठते, हर दिन जब से अल्लाह ताला ने उनको तहज्जुद का हुक्म दिया, तहज्जुद को उठते और उनका दिन वहां से शुरू होता, और हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते अपने काम को, अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के वास्ते। सीरत जब पढ़ते हैं उससे मालूम होता है कि मक्के में हर घर, मक्का छोड़ने से पहले जो मक्के का पीरियड था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पहले नबूवत के 13 इयर्स के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा भी मक्के का घर ऐसा नहीं छोड़े जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए और दावत नहीं दिए। हर घर को गए हैं, हर दहलीज पे गए हैं, और हर में एंटर होके इस्लाम की दावत सब लोगों को दिए हैं। ये टास्क का सीरियसनेस है। मदीने में एक अलग टाइप का टास्क था, मक्के में एक अलग टाइप का टास्क था। मक्के में जंग वगैरह नहीं थे, मदीने में थे। उसके सिलसिले में भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा। तो मक्के में बेसिकली तौहीद की दावत थी, तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की दावत थी। और जो भी जुल्म होने को थे मुसलमाना के ऊपर मक्के में, उसको काउंटर करना, उसको कम करना, उसको खत्म करना, उसकी कोशिश थी। तो हर दिन रसूल वसल्लम अपने काम को, अपनी मिशन को अकम्प्लिश करने की जद्दोजहद में लगे रहे 24/7। ऐसा नहीं कि 2 दिन काम कर लिए, फिर जाके 1 वीक आराम कर लिए, फिर 1-2 दिन काम किए, उसके बाद फिर आराम किए। मुसलसिल हर दिन कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहे, कुछ ना कुछ इक़दाम लेते रहे कि अपने काम के सिलसिले में रसूल वसल्लम बहुत सीरियस थे। ये हमको ये हमको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है कि रसूल वसल्लम अपने टास्क के सिलसिले में बहुत सीरियस थे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मक्के को छोड़ना था और मदीने को जाना था, और उसके बाद मक्के से मदीने को हिजरत भी हुई। मदीने को हिजरत होने के बाद वहां पे अलग प्रॉब्लम्स थे, मक्के के लोकल प्रॉब्लम्स थे, यहूद के वहाँ के प्रॉब्लम्स थे, और इकोनॉमिक बिजनेस रिलेटेड इश्यूज थे। उसके बाद जंगे वगैरह होना शुरू हो गई। तो रसूल वसल्लम हर वक्त कोशिश में थे कि कैसा हम हमारा अगला स्टेप कुफार के अगेंस्ट प्लान करें। एक जंग के बाद अब एक जंग, मदीने को हिजरत करने के बाद और जंगे बदर में थोड़ा टाइम था, तो वो टाइम पे भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना और मस्जिद बनना और बिजनेस वगैरह का काम स्टार्ट करना, उसके बाद आर्मी प्रिपेयर करना, उसमें मसरूफ रहे। उसके बाद जब जंगे बदर से जब जंगे स्टार्ट हुई, उसके बाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम के सिलसिले में बहुत सीरियस थे, और हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता था, कुछ इवेंट को काउंटर करते थे और वो इवेंट को फेस करते थे। और मदीने को बेसिकली जाने के बाद वो एक इस्लामिक स्टेट के वैसा बन गया था। तब बहुत से लोग अलग अलग कंट्री से, अलग अलग प्लेसेस से वहाँ पे मदीने को आते थे रसूल वसल्लम के साथ बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ट्रीटी, पॉलिटिकल ट्रीटी, और बहुत से बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज और पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए आते थे। तो मदीने में भी रसूल वसल्लम ने ये एंश्योर, अगर उनकी जिंदगी और से देखते हैं कि उनकी मदीने की जिंदगी बहुत टाइट शेड्यूल में थी, और हर दिन कुछ ना कुछ एक नई एक्टिविटी, एक नया डेवलपमेंट आता था। तो ये हमको एक अवे मैसेज लेना चाहिए कि जो भी हम लोग SIO के मेंबर हैं या एसोसिएट हैं, जो भी हैं, अगर मेंबर नहीं बने हैं तो बहुत जल्द मेंबर बन जाएंगे।
तो जो भी हमारा सीरियसनेस होना चाहिए हमको हमारे काम को लेके वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए बहुत कुर्बानी और बहुत सैक्रिफाइस की बहुत जरूरत है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जब तक हम हमारे कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे ये काम नहीं कर पाएंगे। और हमको ये काम करने के लिए बहुत सीरियस होना रहना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। बहुत लूज एटीट्यूड या कैजुअल एटीट्यूड बोलते हैं, वो कैजुअल एटीट्यूड से ये काम नहीं कर सकते। ये है सेकंड टेक अवे मैसेज सीरत के हवाले से, पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में, अल्लाह ताला बोलता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। आप बेशक अपने रसूल में आप बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल देखते हो। जनरली आदमिया को अगर जिंदगी, जो भी दुनिया के पॉपुलर आदमिया ही वगैरह, उनको अगर उनके जिंदगी को देखे, उनके जिंदगी के बहुत से कम एस्पेक्ट्स हम लोगों को फील करते हैं कि वो एस्पेक्ट में बहुत एक्सेल करे, मगर दूसरे एस्पेक्ट में एक्सेल करे नहीं। बहुत से लोग फॉर एग्जांपल अपने एरियर में, मैं ये पॉइंट को आता हूँ एक छोटा एग्जांपल देके, बहुत से लोग क्या होता है अपने एरियर में एक्सेल करे रहते हैं मगर अपने पर्सनल लाइफ में फेल्योर रहते हैं। डाइवोर्स हो गया रहता है, या कुछ भी माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता, या अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप वो नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ इश्यू होता है। पॉइंट नंबर 1, कुछ लोग ऐसा होते हैं उनकी फैमिली लाइफ अच्छी है, फैमिली के साथ अच्छे हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे हैं, मगर उनकी जो दूसरी जिंदगी है, उनकी जो प्रोफेशनल जिंदगी है, वो जिंदगी बहुत खराब है। उनकी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, कुछ भी बड़ा उन्होंने अचीव करे नहीं है। सो ये एक एस्पेक्ट है एक आदमी की जिंदगी का, ये जो डिफरेंट डायमेंशन है आपको समझने के लिए। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर देखें तो हर एस्पेक्ट में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेल करे। as a statesman, as a economist, as a town planner, fine, as a doctor, बुक आदमी बुका ले लिखो ही तिब्बे नबवी, मेडिसिन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज उनको ही, तो वो एस्पेक्ट में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक्सेसफुल है। एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ग्रैंडफादर, बहुत से वंडरफुल एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हम वो फील्ड में रसूल जब गए वो फील्ड में सक्सेसफुल है। नबी बनने से पहले रसूल बिजनेसमैन थे। रसूल एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत प्रॉफिट कमाए, बहुत सब ऐसा था। नबी बनने के बाद बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह स्टॉप कर दिए, मगर उसके बाद ऐसा होना था। उसके बाद जो सीरत में लिखते हैं लोग, सीरत वगैरह में और इन डेप्थ रिसर्च करे हैं कि जो रसूल सल्लम पैसा कमाए, अब वही पैसा नबी बनने के बाद मक्के में इस्तेमाल किए। पैसा रसूल सल्लम को इनकम आना स्टार्ट हुआ तो माले गनीमत से, जो जंगा हुई मदीने में, मगर मक्के में क्या भी जंग नहीं हुआ। तो द ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो था रसूल सल्लम को, अपने पैसे जो कमा के थे, बिजनेस करते हुए जो पैसे कमा को थे, वही पैसे रसूल सल्लम मक्के में इस्तेमाल किए अपने ऊपर, और जो भी इस्लाम की वो टाइम पे जरूरत थी वो टाइम के लिए इस्तेमाल किए। तो एज अ बिजनेसमैन देखिए, जो भी रोल रसूल सल्लम का है, वो रोल में रसूल सल्लम बहुत इफेक्टिवली काम किए, बहुत इफेक्टिवली अपने अपने काम को अंजाम दिए हैं। अगर सहाबा के साथ उनका रिलेशनशिप देखें तो एज अ फ्रेंड है, बेसिकली एक दोस्त थे। तो रसूल सल्लम एज अ फ्रेंड, रसूल सल्लम एज अ टीचर, कुरान भी रसूल सल्लम एक जगह कुरान भी रसूल सल्लम को एड्रेस करता है कि वो टीचर है, कि वो सिखाते हैं। तो ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं जो रसूल सल्लम ने इस्तेमाल किया है अपने सहाबा को कुछ चीजें सिखाने के लिए। रसूल सल्लम एज अ वॉर स्ट्रेटेजिस्ट,
जब वॉरें होती थी, कुछ नए नए स्टेप्स लिए, नए नए स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट किए जो अब तक कहीं भी अडॉप्ट नहीं किया गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्टेट्समैन, स्टेट के हेड बनने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स लिए, ऐसे नए लॉज और पॉलिसीज लेके आए जो कहीं भी हमको दुनिया में नहीं दिखते कि वैसे पॉलिसीज, वैसे एस्पेक्ट वहां पे इम्प्लीमेंट हुए। तो ये है तीसरा एस्पेक्ट। इसका बेसिकली हमारे लिए टेक अवे मैसेज ये है कि हम हमारी जिंदगी में भी जो भी रोल परफॉर्म करें, ये इंश्योर करें कि हम बहुत अच्छी तरीके से वो रोल को परफॉर्म करें और इफेक्टिवली उसको अंजाम दें। हम स्टूडेंट हैं, हम एक बेटे हैं, हम एक भाई हैं, राइट? शादी होने के बाद हमें शौहर हो जाएंगे, उसके बाद हमको जब बच्चे होंगे हमारे, हम फादर हो जाएंगे, हम हमारे ऑफिस में हमारा, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस हेड रहेंगे, हम एंटरप्रेन्योर रहेंगे, अगर कोई भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयर बन जाएंगे, या कुछ सालों के बाद अगर हम मैनेजर बनेंगे तो वो हमारा पोजीशन रहेगा। तो वो हर एस्पेक्ट में हमको कैसा बेहतरीन बनना चाहिए, वो हमको ये सीरत से टेक अवे मैसेज है कि जो भी हम रोल परफॉर्म करें उसमें हम सबसे अच्छे बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा शौहर बने, अच्छा भाई बने, अच्छा मैनेजर बने, अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, अच्छा बिजनेसमैन बने। जो भी करें सबसे अच्छा करें और हर एस्पेक्ट को हम एक्सेल करें। ऐसा नहीं कि एक एस्पेक्ट में हम एक्सेल करेंगे और दूसरे एस्पेक्ट्स में खाली एवरेज काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीरियस से हमको ये मैसेज, ये पैगाम भी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको सीरत के हवाले से समझना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फाइन, आगे बढ़ेंगे। मैं जाता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि रसूल सल्लम, मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था कि रसूल सल्लम के अलग अलग रोल्स वगैरह के बारे में बता रहा था। अब एक जो इम्पोर्टेंट रोल है रसूल सल्लम का, कि क़यादत का रोल है, लीडरशिप का रोल है। रसूल सल्लम बहुत अच्छे लीडर है और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। सीरत के हवाले से अगर हम देखें तो हर सहाबी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा रिलेशनशिप था। वो लीडरशिप क्वालिटी ही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अपने मिशन को इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 23 इयर्स अपने वो काम को मुकम्मल किया। और ये ऐसा काम था जो था, और दुनिया में को देखें सबसे कम टाइम में आने वाला रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन है जो 23 इयर्स में आ गया। और दुनिया में कौन सा भी रेवोल्यूशन हमको नहीं मिलता जो सिर्फ पीरियड ऑफ 23 इयर्स में आया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि इतने छोटे स्पैन में कैसा ये रेवोल्यूशन आ गया। राइट? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप क्वालिटीज थे। एक साइड अगर देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बहुत अच्छा उनके साथ, और दूसरी साइड देखें जो उस मिशन को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तरीके से उसको अकम्प्लिश किए, पूरा इम्प्लीमेंट किए और उसको कंप्लीट करें इन अ स्पैन ऑफ 23 इयर्स। ये इसीलिए हुआ क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लीडरशिप क्वालिटीज थे वो बहुत एक्सेलेंट थे, वो बहुत ब्रिलियंट थे, वो बहुत यूनिक थे। इसके ऊपर बहुत से बुक्स भी हैं जो मुस्लिम्स भी लिख के हैं और बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो आप ये बुक्स पढ़िए, इसको, इसमें आपको और इंशाल्लाह इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप कैसी थी। तो अगर हमको एक अच्छा लीडर बनना है, एसआईओ में भी एक अच्छा लीडर बनना है, हमारे फैमिली खानदान में भी एक अच्छा लीडर बनना है, सोसाइटी भी अपना एक अच्छा लीडर बनना है,
اور جہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, یہ بہترین مثال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی وہ لیڈرشپ اور کیا تھے وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو اپنے مشن کو اتنی اچھی طریقے سے اکمپلش کیا. صرف مشن کو اکمپلش نہیں کیا, رسول اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ علیہ وسلم واپس کی وفات ہونے کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد جو قیادت ابھری رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد چار خلفاء آئے, ان کی بھی اگر ہم لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں ان کے بھی ہے, ان کا بھی بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا. یہ سب اسی لیے ہوا جو 40 ایئرز جو خلفاء کا پیریڈ تھا, جو پرنسپل جو بتائے تھے رسول اللہ علیہ وسلم, ان کے جانے کے بعد مکہ مدینہ اور دوسرا ایریا کاظم بھائی آواز نہیں آ رہی پھر ٹائم پہ بہت. ہاں کیا؟ ہاں کاظم بھائی ایک منٹ میں پھر یہ کروں. جی اب آنا چاہیے. جی اب آ رہی کاظم بھائی. اوکے. تو اس کے بعد یہ فورتھ ایسپیکٹ تھا, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ لیڈرشپ جو میں سلائڈ بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. آج بھی یہ 21st سینچری میں بھی 2020 میں بھی کرنٹلی بہت سٹڈیز ہو رہے ہیں انڈیا میں اور بہت سے الگ کنٹریز میں رسول اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر. فائن, جب تک آپ اس کے اوپر کوئی بکس نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر اور اگر ایکسپرٹائز حاصل کرنا اور اگر یہ لیڈرشپ کے ایسپیکٹس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اگر اس کے سلسلے میں کچھ بکس پڑھیں گے تو اچھا ہوگا. اب میں آتا ہوں آخری ایسپیکٹ پہ. ایک لیڈر جب اپنا کام کرتا ہے, آخری کام یہ ہے کہ اپنا جو بھی کام کو انجام دینا, کہتے بھی رزلٹ آنا, محنت کرے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ دیکھنا. جب تک کا وہ رزلٹ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ تو اجر دے گا ڈیفینیٹلی. ہمیں جو بھی کام کر رہے ہیں ایک اچھی نیت سے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دے گا, ڈیفینیٹلی وہ اجر تو ملے گا. مگر یہ بھی ایک لیڈر کی, ایک مومن کی, ایک دائی کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنا کام کر رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک رزلٹ ہو, سوشل چینج ہو, یا جو بھی ہمارا بھی مقصد وہی ہے نا, سوسائٹی میں جو بھی برائیاں ہیں وہ برائیاں ہم کو نکالنا ہے اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس سوسائٹی میں لے کے آنا ہے. تو جب بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے, یہ احتساب کرنا چاہیے, منتھلی بھی ہو سکتا ہے یا ایک سال میں ایک بار بھی ہو سکتا ہے, کہ کیا سوشل چینج آیا ہے ہمارے میں, کیا سوشل چینج آیا ہے ہمارے اطراف جو ہے ان میں کیا چینج آیا ہے, ہم جس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان میں کیا چینج آیا ہے, اور جو سوسائٹی ہے اس میں کیا چینج آیا ہے. تو جب تک ہم ایک کام رزلٹ اورینٹڈ کام ہونا چاہیے. We should not do work for the sake of doing it. We should not do any activity because it is written in the policy program. We should not only do something with an intention to get reward from Allah. We should also do activities with an intention to get some result. تو result oriented کام ہونا چاہیے. یہ بھی صحیح ہے کہ ہر وقت رزلٹ کو میجر کر نہیں سکتے, مگر کچھ حد تک ہم رزلٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی بنیاد پہ یہ چینج آیا ہے. تو میں صرف اس پوائنٹ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ دیکھیں 23 ایئرز کے بعد ایک مکہ ایک الگ پلیس ہو گیا تھا. مکہ ایک کمپلیٹلی ریولیوشن دکھا مکے میں. جو بھی غلط کامات تھے بزنس کے ریلیٹڈ یا سوشل پرابلم, سوشل ایولز,
वो पूरे निकल गए और 20-25 साल के अंदर एक अच्छी सोसाइटी बन गई। मदीने में दूसरे प्रॉब्लम्स थे, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, और पूरे क्योंकि वहां पे यहूद थे, पूरा इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद वो 10 इयर्स की पीरियड में वो पूरा इंटरेस्ट का सिस्टम हट गया, एक अच्छा निजाम आ गया, एक जस्टिस का निजाम आ गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया छोड़ने से पहले एक प्रैक्टिकल चेंज देखे और दुनिया को एक प्रैक्टिकल चेंज दिखाए कि ऐसा चेंज होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10 इयर्स की मदीने में सिर्फ 10 इयर्स थे और 10 इयर्स के लेके आए। तो हमारी भी ये कोशिश होना चाहिए, पहले ये कोशिश होना चाहिए कि हम बदले, हमारे में चेंज आना चाहिए। जब तक हम नहीं बदलेंगे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो बदल जाए। पॉइंट और इफेक्ट टेक अवे, हमारा ये इंटेंशन हर वक्त होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में एक सोशल चेंज आए। तो ये 5 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बस इसी से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।